Hello viewers, welcome to the new video. In this video we are going to discuss the computation of area and volume related to surveying purposes. The first aim is related to why we need the calculation of area and volume. As you know that whenever there is a construction work related to civil engineering, we have to first conduct a survey over there. With the help of survey we find our uh, your points, different point locations, and these point locations give the indication of your shape of the ground. And the shape of ground, with the help of shape of ground you are aware about the area of the ground. With the help of the formula related to volume calculation, we are going to discuss that what amount of soil will be excavated from that particular land, or what amount of concrete will be poured that particular land, so that it will be a leveled ground. Okay, in simple word, whenever we are going to design or construct our project in field, suppose take an example of canal. So before you construct a canal, you have to locate a different point location on your ground. Suppose this is my ground surface, okay, and I'm taking this in my vertical plane, okay. So this ground must be your angular, okay, and you are going to provide a canal in this ground, and this canal is also goes your horizontal direction. So this is the amount, this is the line of your canal, okay, canal bed. This is the line at which you will place your canal bed. So what you will see that you have a different amount of ground surface, ठीक है। इस वाले फेज में आप देख सकते हैं कि जो आपका कैनाल बेड है दैट इज बिलो योर ग्राउंड सरफेस की जो लाइन है उससे नीचे। यू कैन से दैट द अमाउंट विच आई colored here from the yellow will be excavated for your canal bed, okay. So इतना जितना मैंने येलो से कवर किया है दिस मस्ट बी योर एक्सकवेटेड, इसको आप कटिंग करके रिमूव करोगे। The remaining portion you can see there. Here we have little much of earthwork you have to fill here, so that the canal bed will be raised above the ground level. Clear? ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, बट मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। दिस इज योर ग्राउंड लेवल, यहाँ पे जो कैनाल बेड है दिस इज योर कैनाल बेड, इसके ऊपर आपका वाटर फ्लो करेगा। कैनाल बेड ग्राउंड लेवल से नीचे है तो इतना अमाउंट तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा एक्सकवेशन करके। You have to provide some excavation equipment here and just cut this soil and remove this soil basically, so that you will able to prepare your canal bed, ठीक है। और इस कैनाल बेड को आपने कंक्रीट से बनाना है या डिफरेंट मटेरियल से बनाना है, इट इज डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट एम पे डिपेंड करता है। बट अगर आप सेक्शन बी और बी डैश के बाद इधर मूव करते हैं तो सेक्शन बी एंड बी डैश के बाद यू विल सी दैट योर कैनाल बेड लेवल इज अबव योर ग्राउंड लेवल। दिस इज योर बेड लेवल and this is your ground level. So in this case the bed level is above the ground level, so you have to provide some filling material here which is marked by green color. So how much amount of filling material you have to fill here and how much cutting material you have to remove from here, this will be calculated by the area and volume formula. So this is very important for every work related to civil construction, okay. So this can be calculated by three formula, and these three formulas are your graphical method formula, coordinate method formula, and planning meter. And over these three methods your coordinate method is the popular one. And why this popular one? Because these point can help, if these location of points are calculated accurately, the volume and area will be
precisely calculate. Okay, so one by one I will tell the little bit about these methods. The graphical method is represent with this type of concept. I just convert this whole. Okay, I will clear this one for you. Suppose this is my x-axis. Okay, this is my x-axis and this is my z-axis. I am interested to find this equation of this line. Okay, first of all I will find the equation of this line, and then after I will multiply this equation with this x-axis. I will get the area under this curve, and this area under this curve multiply your y-axis, okay, which is in this direction like this. We will get our volume. So this is simple. If we are going to find our volume, we have our area, and this area multiply with your horizontal or transverse directions. In this case I am using y-axis, so this is my transverse direction. So I am only interested to find all the method for your area computation, and these are my three methods. And graphical methods में हमने क्या करना है कि जो हमारी प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है लाइन की, and area under the curve we have to find. Next we have a coordinate method. In this coordinate method we locate points on the ground surface like this. Let me just remove this equation. Okay, so this is my z-axis as I told you earlier, and I am interested to locate my station 1, 2, 3. This is my station, or we can say the station 1, station B, and these are my station D and E. So these are my stations. I will calculate the reduced level of these stations with the help of leveling as well as surveying. If I am interested to find the distance between these stations, I will go with survey. If I am interested to calculate the reduced level of these stations, I will go with surveying instrument, leveling instrument, basically leveling instrument, which is your dumpy level, tachometry and theodolite survey. So which is the important part of your survey? तो ग्राफिकल मेथड में इक्वेशन बनाना मुश्किल होता है, हम हर वक्त इक्वेशंस नहीं बना सकते हैं. वी हैव डिफरेंट profiles of lines, and calculating those equations are very tedious work, as well as those equations will not give you 100% efficient reason as compared to your coordinate method, because your coordinate method is your field work, and according to field work and the nature of those particular area, we are going to design the station on your ground and then find the reduced level as well as the horizontal distance between these stations, which is the part of your surveying. We already covered those things in very good manner, so I hope you understand those concepts. So coordinate method is very popular for civil engineering work. That's why we can say that this method is very useful. And the third one is your planimeter, and this is a planimeter is based on equipment, and we have a planimeter equipment on which first of all we just plot our diagram on your sheets, on your drawing sheets, like plane table survey. We just draw our diagram like this, and with the help of planimeter we just fix this planimeter at the center or that particular point. Suppose I am using, this is my A point, I am fixed at A point, and this A point is must be inside your drawing sheet, as like that you will cover the whole boundary of your work. And using the planimeter you will calculate the perimeter of this boundary. Okay, तो प्लानीमीटर से आपने पेरीमीटर इसका फाइंड आउट कर दिया, एंड प्लानीमीटर में आपके पास एक स्क्रू गेज जैसा मीडियम स्केल होता है, which is your drum type scale. When you move your planimeter in horizontal direction, this will rotate according to that, and the rotation of this screw will give the indication of your area, and this rotation of a screw is calibrated by the manufacturer. So whenever we are in your college and you are
present in your college, we will show you this planimeter. This is also in our surveying lab. So as I told you, I will fix this planimeter at A position. This is the pointer which is moved on your boundary of your surveying work, or the close traversing or irregular boundaries for which you have to find your area. And when you move on your work or the surveying work, this screw rotate in positive direction as well as in negative directions, and the total number of revolution is calibrated by the calibration chart, and then we will find your area. This method is very helpful, but this is ये तभी पॉसिबल है जब ये आपके पास ड्राइंग शीट अवेलेबल होगी. सो प्लानिमीटर हर जगह पे यूज नहीं किया जा सकता. प्लानिमीटर सिर्फ क्लोज एरिया पे ही वर्क किया जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. प्लानिमीटर सेकेंडरी मेथड है. सबसे पहले तो आपको ये ड्राइंग बनानी पड़ेगी. तो आपके पास अगर ड्राइंग शीट नहीं होगी तो यू कैन नॉट कैलकुलेट द एरिया फ्रॉम द प्लानिमीटर. तो आपके पास ये चीजें होनी जरूरी है. Okay, so let's go with the simple rule which is related to your coordinate method. The first rule is your trapezoidal rule, and I'm not going to define that how these are calculated from your figure. We just remember the formula. हमको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, and how to apply this formula in your surveying work, वो चीजें हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए. Although these are the part of your mathematics volume 3, so which you already read in your previous semester. Okay, so these are the trapezoidal rule and Simpson rules. Those, let's start with the first point. The area given by the trapezoidal rule is d by 2. This d is your distance, fixed distance. Okay, so this d is your fixed distance, and O1, ON, O2, O3, O4, these are your points. Okay, like this. तो इस तरीके से मैंने क्या करा है, ये कोऑर्डिनेट बनाए हैं. और आप लोगों ने देखा भी होगा आपके पास, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमेंबर कराऊं, दिस मस्ट बी लुक लाइक योर फील्ड बुक. फील्ड बुक में आपकी जो सेंटर लाइन होती है वो आपकी चेनेज होती है, और चेनेज को आप चेन की लेंथ से डिफाइन करते हो. सो यहाँ पे आपकी टी की वैल्यू 20 मीटर या फिर 30 मीटर है, जो भी आपकी चेन है वो लेते हैं. एंड देन उसके बाद आप ऑफसेट्स ड्रॉ करते हो डिफरेंट पॉइंट्स पे, एंड यही ऑफसेट्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है O1, O2, O3, O4 एंड O5. इज इट क्लियर? ठीक है, तो यही हमारा क्या है. अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हुआ तो हमको कैलकुलेट करना है इस पॉइंट से यहाँ. देखिए एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से यहाँ मूव करें, यहाँ ऐसे करके, जो मैं ये रेड लाइन से कवर कर रहा हूँ बाउंड्री को, मुझे इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इस तरीके से मुझे एरिया फाइंड आउट करना होता है. ओके, लेट मी क्लियर यू. दिस इज माय एक्स डायरेक्शन, दिस इज माय वाई डायरेक्शन. सो आई एम टेकिंग दिस फिगर ऑन योर हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो ये हमारा फॉर्मूला है. आप इसको सिंपल याद कर सकते हो, समेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो जो ये भी हमने ऑफसेट्स लिए हुए हैं, फर्स्ट और लास्ट ऑफसेट का समेशन करिए और रिमेनिंग ऑफसेट्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय d by 2. यू विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ एरिया. ठीक है, सिम्पसन रूल में, सिम्पसन रूल को हम 1/3 रूल भी कहते हैं. This is my 1/3 rule also. In this case we have the same thing, but only here is the d by 3 as compared to your trapezoidal rule. But यहाँ पे एक चीज और है, summation of first and last term is the same, 2 times of odd number and 4 times of even ordinates. तो यहाँ पे इस चीज का याद रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इस वाली वैल्यू को ध्यान दीजिएगा. even ordinates को like this is the first ordinate, this is the second ordinate. तो second ordinate को 4 से मल्टीप्लाई करना है. इसी तरीके से फोर्थ जो इवन कोऑर्डिनेट्स हैं आपके या ऑफसेट्स की वैल्यू यहाँ पे मैं इनको बोलूँ तो उनको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिम्पसन रूल. लेट्स गो विद द न्यूमेरिकल पोर्शन. यू विल अंडरस्टैंड very clearly. So the following offsets were taken from a chain line to an irregular boundary. Please mention here is the irregular boundary, and the data is taken at the interval of 30 meter, and this is the data value 0 to 0 start. Okay, as I told you earlier,
how I calculate? I start from this one. So at this point my chain is 0 and my ordinates is 0. Then I move to further, but at this point I am not moving further. For that simple point I have a OD1. But in this case let's go with this figure. This is, पहले मैं इसका फिगर बना लेता हूँ. तो I will take my field book. देखिए field book आपकी कुछ इस तरीके से होती है, like this. Okay. In this field book my center line is my chainage line. Okay, single line field book, double line field book, and I just start with 0 point, and this is my station A, and finish at station B. I don't know how much value it will take. So the first value will start from 0. After this I have a 10, and at the 10 I have 2.5. okay, so I just draw here 2.5. after this I have 3.5. so here is never given a positive and negative, so don't be confused here. Just take one side to positive, either from left hand side or right hand side. Just take the positive value, because obviously this is your y-axis and this is your axis, this is your x-axis. okay, always taking a field book chainage in your longitudinal direction. तो chainage को आपने longitudinal direction में लेना. तो इस तरीके से, क्योंकि ग्राउंड पे एक्चुअल पोजीशन है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है. वी आर गोइंग टू जस्ट फाइंड योर एरिया. तो ऐसे करके 10 मीटर पे ये लगा. फिर उसके बाद के 10 मीटर पे फिर से एक और पॉइंट बना है, विच इज योर 5 मीटर है. देन आफ्टर हेयर वी हैव ए 4.6 मीटर, एंड द लास्ट वन इज योर 3.2, और उसके बाद आपका 0 होता है. सो आई कैन से दैट दिस इज 10 10 एंड 10. सो मैंने ए से स्टार्ट किया. ए पे मेरा क्या है, 0 0 है. फिर 10 मीटर आगे गया तो कितना आया, 2.5 है. सो आई कैन रीड लाइक दिस पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम ए टू 2.5 टू यहाँ, फिर यहाँ पे 5, 4.6, 3.2, एंड देन अगेन लास्ट पॉइंट मेरा कहाँ गया है, बी पे गया. अगर यहाँ पे मेंशन नहीं होता 0 पॉइंट, तो मेरा फिगर कैसे बनता, मेरा फिगर बनता सिर्फ इतना. एंड आई एम ओनली इंटरेस्ट टू फाइंड एन एरिया ऑफ माय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है. बट क्योंकि इस क्वेश्चन में 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पे खत्म हुआ, तो मुझे ये लास्ट के जो ट्रायंगल है ये भी काउंट करने हैं एरिया में. तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे बनाया है. अब आपको ये दिख रहा होगा, ये एक इरेगुलर बाउंड्री बन गई है. Let me small this rubber. okay, I am changing this hole into a, ठीक है. so I am interested to find the area of this hole. is it clear? you can rotate this figure in this direction also for easiness, but I will suggest you कि आप ऐसे ही फिगर बनाइए, because your field book is just like this. तो सेंटर लाइन आपकी ए से बी हो गई, तो ए से बी की डिस्टेंस कितनी हो गई, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, 10 10 10 10 10, एंड दिस मस्ट बी 10, दिस विल बी 20, दिस इज 30, 40, 50, एंड द पोजीशन ऑफ बी इज विल बी 60. सो ये हम इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं. और यहाँ पे हमें एक चीज़ और करना, नॉर्थ डायरेक्शन कैसे देते हैं फील्ड में, इस तरीके से. साथ में हमें रिड्यूस लेवल ऑफ बी देना होता है, रिड्यूस लेवल ऑफ ए भी देना होता है, 4 बेरिंग ऑफ ए बी लाइन दिया होता है, या बी ए लाइन कह सकते हैं उसको आप. और यहाँ पे आपको 4 बेरिंग ऑफ ए बी लाइन कॉमा बैक बेरिंग ऑफ ए बी लाइन देना होता है. यहाँ पे भी आपको 4 बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ ए बी लाइन देना होता है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर फील्ड बुक. आई एम नॉट गोइंग डीपली इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, बट आपको रिवाइज कराने के लिए ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ी. तो अब आपको क्या करना है, ये सारा फिगर का क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो ट्रेपेजोइडल रूल के अकॉर्डिंग d/2, d क्या है आपका, दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द चेनेज विच इज योर 10 मीटर. सो यू कैन सी हियर वी हैव d = 10/2. आफ्टर दैट लास्ट टर्म 0 है और फर्स्ट टर्म भी 0 है, तो 0/0. उसके बाद जो रिमेनिंग सारे पॉइंट्स ऑर्डिनेट्स हैं, 2.5, 3.5, 5, 4.6, 2.2, या हमने यहाँ लिख दिया एंड इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो हमारा एरिया निकल गया मीटर स्क्वायर में.
When we are moving to the Simpson rule, so 10/3, लास्ट और फर्स्ट टर्म 0 0 है. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म. तो हमारे पास 5 टर्म है एंड 6 टर्म. तो फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन टर्म्स है. ओके, डोंट बी कंफ्यूज. लेट आई टेक दिस इज माय फर्स्ट रीडिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड दिस इज द सेवंथ. तो जो फर्स्ट टर्म एंड सेवंथ ऑफसेट्स था वो हमारी जीरो वैल्यू है, 0 0. उसके बाद जो रिमेनिंग बचे हैं हमारे 2.5, 5 एंड 3.2, ये हमारे इवन है. तो इवन को हमने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑड ऑर्डिनेट्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. जो एरिया निकला है वो हमारा 196.66 निकला है. फ्रॉम दिस कैलकुलेशन वी कैन से दैट द एरिया कैलकुलेटेड बाय सिम्पसन रूल इज ग्रेटर देन द एरिया कैलकुलेटेड बाय ट्रेपेजोइडल रूल. सो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है. ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन द पॉइंट्स इज गिवन and this is in the form of chainage. Okay, these distance are in the form of chainage and offsets is given in the second row. Just draw the figure for this particular numerical. So first of all we have a page, field book page like this, and inside this field book page we have a center line, and in this case I will draw station B. At this I have draw station A. Let take this line as much straight as I can possible. Okay, so this must be your 80 meter and this must be your 0 meter, and then take the 5, 10, 15, 20, 30, 40 and 60. Note down these are not up to the scale, otherwise this much 5 distance and 60 और 80 के बीच में तो 4 गुना होना चाहिए था. तो ये स्केल के अकॉर्डिंग मैं नहीं बनाना, जस्ट इट इज अ रफ. आप चाहो तो स्केल के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो. एंड व्हेन आई मूव एट 0 पोजिशन माई ऑफसेट इज 2.5 मीटर. 5 पे जाने पे इट विल बी 3.8, 10 पे जाने पे ये आपका 4.6 हो गया है. ठीक है, मैं इसको अंदर लिख लेता हूँ थोड़ा सा. ओके, लाइक दिस इज 3.8, 4.6, दिस मस्ट बी योर 5.2, दिस इज योर 6.1, देन 30 पे आपका 4.7, 5.8, 60 पे आपका 3.9 एंड 80 पे आपका 2.2 है. सो अगर मैं यहाँ पे इसको रेड लाइन से कवर करूँ तो 0 से स्टार्ट किया मैंने, 2.5 पे गया, 2.5 से फिर 3.8, 4.6, 5.2, 6.1, 4.7, 5.8, then I move to 3.9 and then I have to finish at 2.2 to the B point. तो आप देख सकते हो कि जो एरिया है वो कुछ इस तरीके से इसका और इनके बीच जितने भी फिगर है उनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, सो आई कैन से दैट माय फर्स्ट ऑफसेट इज 2.5 एंड लास्ट ऑफसेट इज 2.2. बट यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो कॉमन डिस्टेंस जो D है विच इज नॉट सेम फॉर ईच वन. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है. अप टू दिस वैल्यू वी हैव 5, बट 15, 20, 30, 40, 50, 60. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना हो जा रहा है, 10 का डिफरेंस है. एंड आफ्टर दैट वी हैव ए डिफरेंट विच इज 20. तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे रहा हूँ. This is up to this position we have a 5. So I can change this into my 3 figures. Okay, तो मैंने क्या करना है, इसको चेंज कर देना है 3 फिगर्स में.
एक तो मेरा 0 से 50 तक मूव करेगा, दिस इज माय एरिया 1, ठीक है। उसके बाद 20, 30, 40 तक मेरा एक और कर रहा है, दिस इज माय 2, एंड द लास्ट वन है दैट इज माय डेल्टा 3। तो दीज आर माय 3 फिगर्स, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ड्यू टू दिस कॉमन गैप नहीं होने की वजह से मैं इसको एक कंप्लीट फिगर में नहीं कंसिडर किया, 3 अलग अलग फिगर में कंसिडर किया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू find the different area for section 1, 2, 3, okay, like this, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इस तरीके से, सॉरी 15 तक है, और ये यहाँ से यहाँ तक है, और फिर यहाँ से इधर भी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ वैल्यू कॉमन हो रही है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, लेट्स गो विद द सेक्शन 1 व्हेन वी अप्लाई द ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला। So D will be equal to 5 by 2 for trapezoidal. First term is 2.5 and your last term at the 20 position, which is 6.1. So you can see that after between these offsets we have 3.2, 4.6 and 5.2, which is multiplied by 2, we will get 89.50 meter square. For delta 2 or section 2, the first term is at 20, which is 6.1. and the last term is your 5.8. between these only one offsets is there, which is 4.7. this must be multiplied with 2, and the common distance is D, divided by 2, we will get 106.50 meter square. So this is the section of second section. Then last section we have first value is 5.8, last value is 2.2, between these 3.9 is here, so we apply the both things here, 3.9 in the center multiplied by 2, and here the change is the common distance, which is 20 meter. We calculate our area third. Summation of these three sections, we will get our total area of this whole figure. Okay, same thing we apply with Simpson rule. In Simpson rule we have 4 multiplication with even offsets and odd multiplication with 2. So I will discuss here. This is my first and this is my last one, so this must be add singularly, सिंगल में ही हम इन्हें ऐड करेंगे। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो 5.2 प्लस 3.8 विल मल्टीप्लाई विथ 4 एंड 4.6 विल मल्टीप्लाई विथ 3, मल्टीप्लाई विथ 2। इनको हमने यहाँ पे रखा, ओके, एंड वी गेट अवर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्लियर? सो 4.6 हमारा थर्ड ऑफसेट था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1, तो थर्ड को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो बस इसी तरीके से फर्स्ट एरिया निकला। सेकंड के उसमें देखिए 20 पे हमारा ऑफसेट 6.1 है, दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू 4.7 है, थर्ड वैल्यू माय 5.8 व्हिच इज माय लास्ट वैल्यू। सो हियर नो ऑड ऑफसेट्स आर देयर, सो 2 मल्टीप्लाई हम किसी से नहीं करेंगे, 4.7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको और इसको हम सिंपली प्लस करेंगे एंड दैट विल बी गोज टू होल समेशन डिवाइड बाय 10/3। सो देखिए यहाँ पे आपको कहीं पे भी 4 से मल्टीप्लाई करने को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ हमने जो वैल्यू हमारी मिडिल की है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे 4.7 जो है, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट अप्रोच, माय सेकंड, सो सेकंड इज माय 4.7, दिस मस्ट बी मल्टीप्लाई विद 4। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक इन्होंने कर दी है, प्लीज नोट कर दीजिए यहाँ पे। तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, the value which is here। okay, this is my last one or the second one, first, second, third। तो second one will be multiplied by 4, second one will be multiplied with 4। okay, so this is the Simpson rule। यहाँ पे इसको 4.7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर जो आएगा वो आप देख लीजिएगा करेक्ट करके, ठीक है। लास्ट आपका थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन में फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, इसके बीच में सेकंड वैल्यू 3.9 है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, लाइक दिस।
तो देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है या कुछ भी मिस्टेक है, आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। तो उसके बाद जो कैलकुलेशन करा आपने वो इतना आया, डी आपका चेंज हो गया। फाइनली यू विल गेट द आंसर लाइक 349.32 मीटर स्क्वायर। सो ये आपका रिलेटेड था एरिया से। ओके, अब वॉल्यूम के केस में क्या होता है, सी दिस इज योर y axis and this is your x axis, this is your x axis। ओके, जो चेन लाइन होती है वो x एक्सिस में करती है और y एक्सिस। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई मल्टीप्लाई दिस होल विद z, और z तो सबके लिए कॉमन होगा, तो ये एक तरीके से 3D डायमेंशन बनेगा। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन से बाहर आएगा सारा z डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊं कुछ इस तरीके का, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके का अगर मैं बॉक्स बनाऊंगा तो ये भी कुछ इस तरीके से इसका 3D फिगर बनेगा वाई डायरेक्शन में। देखिए ध्यान दीजिए, वाई डायरेक्शन में ये और इसके, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं आपको 3D फिगर बनाने की कोशिश करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस वाई डायरेक्शन, सॉरी दिस जेड डायरेक्शन, ये सबके लिए क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो अब आपने इतना एरिया फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन रूल एंड ट्रेपेजॉइडल रूल। इफ यू मल्टीप्लाई दिस होल एरिया विद द कॉमन हाइट विच इज योर जेड, ठीक है, यहां से यहाँ की जो हाइट है वो जेड है, यू विल गेट योर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, यहाँ पे एरिया इंटू जेड डायरेक्शन, जेड इज योर हाइट विच इज कैलकुलेट फ्रॉम योर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वॉल्यूम निकालना इजी होता है, अगर आपने एरिया निकाल दिया तो जेड डायरेक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, you will get your answer। okay, so this is all about the volume concept। now we move to the numerical portion। okay, so this is the numerical। here the exercise, the following offsets were taken at 15-meter interval from a survey line to an irregular boundary line। offsets are 3.5, 4.3, 6.75, 5.25, 7.5, 8.8, 7.9, 6.4, 4.4, 3.25 meter। so you have to draw your field book, then you have a page. in this page A station and B station are differ from equal interval, which is your 15-meter interval, and from these points we have first point is 3.5, then 4.3, 6.7, 5.25 and so on। ऐसे ऐसे करके आपने ये फिगर बनाया। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। एरिया निकालने के लिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास सिम्पसन एंड ट्रेपेजॉइडल रूल्स हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट द एरिया एनक्लोज बिटवीन द लाइन द इरेगुलर बाउंड्री लाइंस एंड द फर्स्ट इन द, तो ठीक है, ये आप एरिया इसको निकाल दीजिए। दिस इज योर एक्सरसाइज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एरिया। in the next video we will go with computation of volume, and as I told you earlier, this is very simple, apply the trapezoidal and prismoidal rule, and here the prismoidal rule is related to your Simpson 1/3 rule। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो तरीका हमारे पास सिंपल सा ही है कि जस्ट फाइंड योर एरिया एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक तो सिंपल एरिया। दूसरा हमने यहाँ पे क्या करते हैं कि हम हर पोर्शन का एरिया निकालते हैं और उस एरिया को, फर्स्ट पोर्शन का एरिया, सेकंड पोर्शन का एरिया, उनको हम, ये जो डी है, दिस इज माय कॉमन हाइट, जेड डायरेक्शन की जो हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी विल गेट अवर वॉल्यूम। दिस इज ट्रेपेजॉइडल रूल। प्रिज्मोइडल रूल आपका सिम्पसन 1/3 की तरह है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। एंड अगर आप ये एग्जांपल भी देखेंगे, सो यू विल गेट द आंसर्स हियर। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू compute the cost of earthwork involved in cutting open a trench of following size। लेंथ आपको दे रखी है, साइड स्लोप दे रखी है, डेप्थ ऑफ ट्रेंच इज 4 मीटर, बॉटम विड्थ ऑफ ट्रेंच इज 1.5 मीटर, कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क इज 50
₹50 per meter cube. अब let's see this cross section diagram. Cross section diagram means I am interested to draw my figure in Z, Y. ठीक है, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि हमें डायग्राम बनाना है y और z में. इस मीन्स x आपका क्या होगा, यहाँ x यहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, x इज योर लॉन्गिट्यूड. तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका पास एक क्या है 4 मीटर का बॉटम एंड ट्रेंच. यू हैव ए ट्रेपेजॉइडल फिगर लाइक दिस. लेट मी क्लियर दिस फिगर टू यू बिकॉज इट विल हेल्प टू फाइंड द एरिया लाइक दिस. सो दिस इज 1.5 meter bottom width, height is 4 meter. Okay, and the side slope is given here. Side slope means, what do you mean by the side slope? This is your side slope of this particular portion, which is 2 meter and 1. Okay, when you move 2 meter you will get the 1 meter depth, and here the same thing. So I can say that my top width will be equal to 1.5 plus 2 multiply by 2 into 4. ठीक है, तो ये सब हमने ट्रेपेजॉइड में सीखा होता है. सो एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजॉइड विल बी, एरिया कैसे निकालते हैं ट्रेपेजॉइड का, समेशन ऑफ बॉटम साइड एंड टॉप साइड विच इज 1.5 प्लस 2 into 2 into 4. ठीक है, ये होता है मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 4 मीटर डिवाइड बाई 2. तो ये हमारा एरिया होता है उसका. अब आपको ये टॉप, अगर आपको टॉप हाइट निकालने नहीं आ रही तो मैं इसको आपको फिर से बना के दिखाता हूँ किसी अलग जगह पे, बिकॉज अदरवाइज वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी. और फिर हम फॉर्मूला भी डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो ये आपका 1.5 मीटर है. इसका मतलब ये भी आपका 1.5 मीटर होगा यहाँ से यहाँ. ठीक है, और ये आपका 4 मीटर की डेप्थ दे रखी है. अब स्लोप ये कहता है, दिस इज द स्लोप. स्लोप का मतलब ये है कि अगर आप 2 मीटर हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो यू विल गेट 1 मीटर हाइट. तो अगर आपकी हाइट 1 मीटर है तो आपको 2 मीटर का डिस्टेंस मिलेगा. लेकिन अगर आपकी हाइट 4 मीटर होगी तो आपको ये कितने का मिलेगा, यू विल गेट 8 मीटर. ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई विद द 4. सो दिस वैल्यू विल बी 8 एंड दिस वैल्यू विल बी 8. ठीक है, अब ये 8 कैसे निकला, आपने क्या मल्टीप्लाई किया 2 को. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस स्लोप को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 into n. So what you get this 8 meter when you multiply your 4 meter which is your height to the n value. ठीक है, n value. तो ट्रेपेजॉइडल की जो टॉप सरफेस होती है वो क्या होती है, बॉटम यहाँ से यहाँ की सरफेस b प्लस ये कितना हो गया n into h प्लस n into h. अब वैल्यू कोई भी हो आप उसको कंफ्यूज नहीं करना है. और आपकी बॉटम की वैल्यू कितनी है, b है. ठीक है, अब आप मुझे बताइए हाउ वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजॉइडल. ऑब्वियसली इट इज वेरी सिंपल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. सो आई रिमूव दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन फ्रॉम दिस फिगर. व्हाट वी विल गेट, मैं एक रेक्टेंगुलर मैंने बाहर कर दिया विच इज हाइट h एंड बेस b, और उसके बाद मेरे पास जो ये ट्रायंगल बचा उसको मैंने ज्वाइंट कर दिया लाइक दिस. ओके, दिस इज माय हाइट एंड दिस मस्ट बी योर nh डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की भी वैल्यू क्या हो जाएगी nh. ठीक है, तो ये दो फिगर मैंने इस तरीके से अलग अलग डिफाइन कर दिए. अब एरिया रेक्टेंगुलर का कितना होता है BH प्लस ट्रायंगल का कितना होता है हाफ. बेस की वैल्यू क्या है NH प्लस NH. ओके, मल्टीप्लाई विद द हाइट. हाइट क्या है h है. सो इन दोनों को मैं ऐड करेगा तो क्या निकलेगा BH प्लस दिस इज मस्ट बी योर 2 टाइम्स NH प्लस 2 multiply h. Okay, just take the common of h, we will get h will be equal to b plus nh. ओके, यही हम लोगों को पता चलेगा. तो अब यहाँ पे अगर मैं अंदर बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेट्स 2
से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो. दिस इज द एरिया ऑफ योर ट्रेपेजॉइडल एंड आई जस्ट ड्रॉ ए ट्रेपेजॉइडल लाइक दिस. सो दिस मस्ट बी h by 2. अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2b प्लस एन, h के आगे भी 2 लगा दीजिए. इसको थोड़ा और डिफाइन करिए. दिस मस्ट बी h by 2 b प्लस 2nh. ठीक है, b को हमने अलग अलग कर दिया. नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अ b एंड दिस इज अ b प्लस 2h. अब आप जरा ध्यान दीजिए फिर क्या आपको पता चलेगा. देखिए b की वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर बॉटम विड्थ एंड t की वैल्यू क्या है, b प्लस nh विच इज योर टॉप विड्थ. ठीक है, तो टॉप ऑफ ट्रेपेजॉइडल. तो हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया होता है ट्रेपेजॉइडल का, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ एनी ट्रेपेजॉइडल विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ पैरेलल साइड multiply by height of trapezoidal divide by 2. So this formula you will always remember for your competitive exam as well as for general purpose also. ठीक है, तो मैंने यहीं पे वही चीज करी. 15 my bottom width and top width is my 1.5 plus 2 multiply nh. clear, multiply with height by 2. तो यहाँ से मेरा एरिया निकल गया and this area multiply my this लेंथ. ठीक है, अगर मेरे पास लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है 200 मीटर. अगर मैं इसको 200 मीटर से मल्टीप्लाई करूं, वी विल गेट माय वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब बिकॉज आई यूज दिस 4 मीटर, 1.5 मीटर, 200 मीटर. आई विल गेट द आंसर इन मीटर क्यूब. सो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, वॉल्यूम पता करिए. अब इतना जो अर्थ वर्क है आपको, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि आपने ओपन कटिंग करी है ट्रेंच बनाने के लिए. ठीक है, कटिंग कर रहे हो तो इसको रिमूव कर रहे हैं, तो जितना वॉल्यूम है उसको अगर आप 50 से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट योर कॉस्ट फॉर योर. ओके, सो हियर द कॉस्ट ऑफ अर्थ वर्क. अच्छा ठीक है, पर मीटर क्यूब का कॉस्ट वर्क दे रखा है, तो आपको कितना कॉस्ट लगेगा इतने को रिमूव करने में वो आपको. ओके, अगर आपको फिगर से समझाना है, लेट्स ड्रॉ ए गुड फिगर फॉर यू. सी, this is your vertical section. Okay, I hope you don't have any doubt with this vertical section. Now draw this x-axis like this. You will get one cross section here like. Okay, so this basically is your total trench. तो ये आपकी एक टोटल ट्रेंच बन गई है. ठीक है, इस टोटल ट्रेंच का आपने वॉल्यूम निकाल दिया है और ये डिस्टेंस आपकी कितनी 200 मीटर थी. तो इसका आपने वॉल्यूम निकाल दिया और 1 मीटर क्यूब की सॉइल रिमूव करने में या उसके रिलेटेड जो भी वर्क है उसका जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है. तो टोटल का कॉस्ट कितना हो जाएगा वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके ट्रक फिलिंग में भी आते हैं कि अगर आपका टोटल वॉल्यूम कितना है 7600 मीटर क्यूब है और एक ट्रक की कैपेसिटी आपकी 10 मीटर क्यूब है, तो हाउ मेनी टाइम ए सिंगल ट्रक कैन be used for transport this particular soil, or you can say that how many number of trucks you need to transport this soil in a single time. तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर ट्रक 10 मीटर क्यूब का है, उसकी कैपेसिटी है, तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तो 760 टाइम्स एक सिंगल ट्रक को आना पड़ेगा इतनी सॉइल को रिमूव करने के लिए. और अगर सिंगल टाइम में आना है, एक ही बार में रिमूव करनी है सॉइल सारी की सारी, तो 760 ट्रक्स मुझे जरूरत पड़ेंगे. और अगर मेरे पास 10 ट्रक्स हैं अवेलेबल फॉर माई कंपनी, आई हैव ओनली 10 ट्रक्स, देन आई नो दैट ईच ट्रक विल गो विद 76 टाइम. ठीक है, ईच ट्रक विल गो विद 76 टाइम टू कंप्लीट रिमूव दिस मच ऑफ सॉइल फ्रॉम द साइट कंडीशन. तो ये इसलिए हम वॉल्यूम का जो पैरामीटर है उसको कंसिडर करते हैं सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वर्क में. ओके, नेक्स्ट मूव to the second questions. In this question compute the volume of earthwork involved in a construction of farm. Pound की बात करिए, it will be a circular of a following size bottom. Okay, this whenever this is a reading, तो जब यहाँ पे ऐसी रीडिंग दे रखी है तो आपको समझ जाना चाहिए this pond it must be a rectangular shape. Side slope is given like this. Depth of pond is 4 meter. वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ 50 पर मीटर. ओके, तो साइज का दे रखा है, एरिया हमने निकाल दिया है लाइक दिस.
This is your y-axis, I hope, and this is your x-axis, and I am drawing a rectangular pond on your horizontal ground which is 6 meter by 4, और हमें इसकी डेप्थ दे रखी है, डेप्थ इज माय 4 मीटर, ठीक है। तो 4 मीटर मेरा जेड डायरेक्शन में मूव करेगा। सो इस तरीके से मैं इसको ऐसे लाइन बनाऊंगा तो 4 मीटर का बनेगा, ठीक है। अब मुझे लेंथ ऑफ पॉन्ड पता करनी है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ओके, सो दिस क्वेश्चन विल टेक फॉर होमवर्क एंड दिस क्वेश्चन will take for another video, because in this case I have to draw a different phase diagram for this particular pond, because ये pond कुछ इस तरीके से, अगर मैं आपको इसको z डायरेक्शन में शो करूं तो ये कुछ फ्रस्टम टाइप का को लाइक दिस इज ओके। तो यहाँ पे ठीक है, ये जो है ये 1:2 का है। सिमिलरली सबके लिए यहाँ पे 4 फिगर बन गए आपने, देखिए। एक तो ये जो अंदर है दिस इज 1, साइड वाले 2 और 3, और तीसरा चौथा वाला जो है जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा होगा, लेट्स ड्रॉ दिस वन। इस लाइन पे जो चौथा है, तो हमें सबका सरफेस एरिया निकालना है। एक नीचे एक सरफेस एरिया है, और इस तरीके से हमें इसका क्या करना पड़ेगा, लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एंड देन वी विल गो विद द वॉल्यूम केस। सो आई थिंक दिस इज हाई वर्जन ऑफ वॉल्यूम कंप्यूटेशन, and I suggest that this must be take as homework, या आपको एक्स्ट्रा करिकुलम में ले लीजिए इसको, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो सफिशिएंट था, और इसी टाइप के आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। एंड दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन वी हैव दिस ट्रेपेजोइडल सेक्शन, बट फॉर फ्यूचर वी हैव सम irregular shapes as we use like this. This is the irregular shape in which we have different offsets value, and this is my values d d d, and we extend like this and we will get our volume. So this is all about the volume. I hope you like this. Thank you, have a nice day, stay safe.